Good evening, everyone. Welcome to a truly special session, one that goes far beyond exams and ranks and dives into clarity, discipline, and long term vision. Today's speaker is not just a rank holder, but a powerful example of what strategic preparation and consistency can achieve at the highest level. With exceptional results across three of India's toughest professional courses, including All India Rank 9 in CS Professional, All India Rank 30 in CMA Intermediate, and an incredible score of 398 marks in CA Final. Her journey speaks volumes about focus and execution. Her professional foundation was built during articleship at Grant Thornton, where she gained strong exposure to statutory audits and regulatory frameworks. Today, she channels that experience as a full time educator, mentoring CA, CS, and CMA students in subjects like law, audit, and indirect taxation, known for her clarity, structure, and practical insights. In today's session, she will break down that what it really takes to excel across multiple courses, how to make smart, informed career decisions, and how students can build real credibility beyond just clearing exams, and yes, followed by a live Q&A you won't want to miss. So get ready to take notes, rethink strategies, and get inspired. Let's give a warm and energetic welcome to CACS Shatakshi Agrawal. Now I would request Kusha and Himanshu to please proceed with the questions. Okay, Shadakshi. So my first question Introduction. Thank is, you so much for such a wonderful introduction. It was really wonderful. Welcome. Welcome. Hmm. all right. So Shadakshi, my first question for you is, if you had to start the session with one story that captures your entire CA, CM, and CS journey, which story would you choose and why? Story. See, it is like the journey has been sorts of all types of chaos mixed in like 2, 3 years of my life, I would say. But like I break it down into some few short stories, I would say, instead of putting it in one story जहाँ पे मैं सब कुछ capture कर पाऊँ, that would be really difficult. So for me, it was like मैंने एक before starting this journey, मैंने सुनी थी and I knew that I want to build my mindset on this journey. So there was this one monk and उनके पास एक boy जाता है who is into some bad habits or something and he always feels कि यार मैं थोड़ी सी मस्ती कर रहा हूँ इससे क्या ही होगा. So that monk he asks him कि अरे यार यहाँ पे एक sapling है, आप इसको निकाल सकते हो क्या मेरे लिए. So the boy is like कि okay and he goes and वो sapling निकाल के और monk को दे देता है. And then monk is like कि यहाँ पे इसकी साइड में एक और there was like a bigger plant. So the monk asks कि अब इसको भी आप निकाल दो. So the boy tries and tries but he could not uproot that plant. So he was like कि ये नहीं हो पा रहा है but एक तो आप मुझसे ये सब करवा क्यों रहे हो. So the monk tells him कि ये जो plant है it was a sapling 3 months ago. So आज आप जो ये एक चीज कर रहे हो 3 months के बाद it will be so rooted down inside the ground that you won't be able to change it. So एक I knew कि यार okay so these are how habits are built. So it is never going to be a single day's effort. Throughout the 3 years, it is going to be small, small things which show the bigger picture of success today. And second, I knew that ये सुनने में अच्छा है कि यार हैबिट्स बिल्ड कर लो बट देयर विल बी circumstances situations thrown at you लाइफ में जहां पर those habits will not exactly help you because वो आपके रूटीन का पार्ट नहीं है. हैबिट्स तो आपने रूटीन में बिल्ड किए हैं. So there was one more a very nice example that I have heard in some series that helped me कि if you enter into a room and it is all dark तो आप क्या करोगे. आपको नहीं पता कि कौन से स्विच से लाइट ऑन होने वाली है. सो यू वुड जस्ट स्मैक योर हैंड ऑन द स्विच बोर्ड एंड ट्राई कि कोई तो स्विच काम करे. सो दैट इज नॉट अ हैबिट बट स्टैंडिंग इन द रूम इज नॉट गोइंग टू हेल्प. You need to press random buttons on the switchboard कुछ भी करो but get yourself out of that situation. So ये दो stories I think are something कि पहले work on habits and on the days habits don't work out for you कुछ तो करो. Don't just stand there, I would say. इसी के लिए एक लाइन भी है कि you don't drown falling in the water, you drown by staying there. तो just do something, get yourself out of the situation. बाकी on an everyday basis it is the habits that are going to help you. Okay.
Shatakshi, my question is practically what is the core difference between CA, CS, and CMA, and why did you do to choose these courses? CS, CS and CMMA, it is three of them now. They specialize in their own fields. ठीक है. So CA का what I have seen, CA covers majorly accounts, audit and tax. These are the major focus areas of CA. ठीक है. When you go to CS, CS mainly focuses on law, the legal aspects. So CS में अब mostly we are all CA students here. So you know the subjects accounts, financial management, taxation, audit. CS में when they mix subjects, different types of law. So you will have industrial laws, you will have corporate law, obviously, you will have securities law, intellectual property laws. इस तरह से different types of law. So CS is someone who specializes in law. And CMA में they focus more on the operational aspects of a company. So budgeting, costing, all these things, these are more focused CMA के course में. तो and the reason for me choosing it was like, so before I got into CA, I knew मुझे teaching करना है. But subject was never like कि हाँ पता था. So when I started CA में, I was like कि I find law interesting. It is something that excites me. So I wanted to teach law and to have that bigger picture of law, to have the more deeper understanding. I chose कि यार हाँ मुझे साथ में CS भी करना है, to have a better understanding for law. And then after that CMA, so basically I had started part time में teaching कर रही थी. ठीक है. After like 1.5 years of clearing inter, I started part time teaching. So I was teaching CA inter के students, and तब there were a few CMA inter students that had also joined the classes. So they were like कि साथ में we'll do law, and साथ में there were like 2-3 subjects. I had combined them with the CA students. तो उसमें I understood कि okay, the subjects are very similar, the course, the pattern is very similar. So I was like CMA could always be like the cherry on top of the cake. So CMA में it was like कि हाँ, something I did थोड़ा impulsively, I would say, but it was not very well planned as such CS जितना, but it worked out for good. Okay, thank you, Sadakshi. That was a very good gist of all of the courses. So my next question for you is, जब आप अपनी पूरी journey को देखते हो in retrospect, what do you think is that one decision you took as a student which felt very small at that time, but it changed your entire direction? Direction of the career. Yes. Okay. So now when you say student, you did not mention a CA student. So there was this one very small decision that I took as a student when I was like 10-year-old, I would say, in probably in 6th standard or somewhere. So we like had a house help. So she had like two kids, एक first standard में, एक second standard में. She had two boys. Okay, and one day I heard her complaining to my mom कि they don't study and I don't know what to do. I am here all the time at the house cleaning and this. I don't know what to do. So I told her कि आप यहाँ पर आते हो 1-2 घंटे, you spend at our house, right, cleaning and everything. So bring these two kids with you. यहाँ पर let them stay for 1-2 hours. I will teach them. मैंने randomly I had offered that. So she was like, okay. And that 1 year I never like charged also anything for it, nothing. It was just like out of करके देखते हैं. So it was a very small decision, did not look big at that time. But that was that 1 year, वो 2 बच्चों को पढ़ा के I knew कि मुझे lifetime teaching करना है. So now my entire career is based on that one small decision. I feel कि वो 2 बच्चे पढ़ाए उस वक्त. Okay. So, Shatakshi, my next question is like during your 4 month exam prep, how did your actual study routine differ from what you planned on paper? Like, what are the deviations between your actual plan and your designed plan? So if I have to say, there were a lot. It was never. एक तो like I feel this is also one of the misconceptions people have कि यार okay, those scoring nice marks or rankers or something, इनका तो एकदम प्रॉपर चलता होगा. दे गेट टू फॉलो द. ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत डेविएशन होता था प्लान से. इट इज जस्ट आई गेस द फैक्ट दैट दे नो कि दोज डेविएशंस आर ओके. इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. तो इवन ये चीज मैं बहुत बार बोलती हूँ कि आप जो
प्लानर बना रहे हो, आप जो शेड्यूल बना रहे हो, यूज इट एज अ फ्रेमवर्क इंस्टेड ऑफ अ डेडलाइन. सो व्हेन सपोज फॉर एग्जांपल यू हैव केप्ट अ टारगेट फॉर योरसेल्फ कि मुझे 8th को नाइट को ना इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, एंड फिर वो कंप्लीट नहीं हुआ. सो नाउ यू नो दैट यू, इट इज, वो बचपन में पढ़ा था मैनेजमेंट में 5 स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, तो लास्ट में आता था डायरेक्टिंग का कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड बजटेड परफॉर्मेंस, आप डेविएशन कैलकुलेट करो एंड रीजन समझ लो. सो ये जो प्लानर है, दिस इज ओनली अ फ्रेमवर्क कि ओके मैं 2 दिन पीछे हूँ शेड्यूल से. इट इज नॉट अ डेडलाइन कि अरे यार आरओसी को ना इस डेट पे फाइलिंग नहीं हुआ तो पेनल्टी लग जाएगा. पेनल्टी नहीं लगने वाला है, तुम तुम्हारे ही प्लानर से डेविएट हुए हो. तो यू डू नॉट, यू नीड टू बी लाइक, पैनिक मत करो, बिकॉज व्हेन यू पैनिक तुम आगे के दिन भी खराब कर दोगे. सो वॉट एवर स्टडी मेकिंग ना, use it as a framework. Don't think of it as deadlines that you are missing and panic about it. So पर्सनल एक्सपीरियंस में वो डेडलाइंस में आई यूज्ड टू ऑलवेज, व्हेन आई यूज्ड इवन मेक प्लानर ना 4 मंथ्स का, तो मैं लिखूंगी कि 2 महीना पढ़ना है, एंड आई वुड कीप 1 वीक का बफर जिसमें मैं कोई भी टारगेट्स लिखूंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है आई एम गोइंग टू लैक समवेयर हियर. तो 1 वीक का मैं प्लानर में ही बफर लिखा है मैंने बस, जिसमें कोई सब्जेक्ट या टॉपिक डला हुआ ही नहीं है. सो वो 1 वीक कंप्लीट वॉट एवर इज लिफ्ट. So the plan is only for you to understand how much you are deviating. It is not a deadline because there will be, कभी फेस्टिवल आ गया, कभी घर पे कुछ हो गया. These are all practical problems. Even when you see, किसी YouTube वीडियो में या कुछ, when they give you a planner, now it is only human for them to not know कि how are things at your place. They cannot make adjustments for something like that. Now you would know, suppose तुम्हारे पेरेंट्स का बर्थडे है, ठीक है, इट इज नॉट अ फेस्टिवल सो नॉट एवरीवन नोज अबाउट इट, बट आई वुड नो कि अच्छा ओके बिकॉज इट इज समवन्स बर्थडे हियर, समवन क्लोज टू मी, आई कीप दीज 2 days एम्प्टी बिकॉज आई नो आई वोंट बी एबल टू स्टडी. सो इस तरीके से आप प्लानर बनाओ एंड कीप इट एज अ फ्रेमवर्क. तो डेविएशंस बहुत थे, टू समराइज द आंसर, बहुत ज्यादा डेविएशंस थे थ्रू आउट. Got it. So now you have been through that phase many times. वो जो final 1-2 months होते हैं exam से पहले. So supposing it's the final 30 days before exams, what should be on a CA, CS or CMA students' non-negotiable daily checklist? Like what are some things they should keep in mind? तो लास्ट 30 days है ना, यू कांट अफोर्ड टू बी इमोशनल इन लास्ट 30 days. And by emotions, I don't just mean ki, you will be crying over someone. To be very frank, that is not what I mean when I say being emotional. The emotions could be of laziness, burnout, could be anything. ठीक है, not necessarily कि just feeling sad. Could be of all types, even feeling a lot of joy. You can't afford to feel a lot of joy in the last 30 days. ठीक है. सो क्या होता है कि या तो वही learn how to regulate your emotions or you just eliminate them altogether, at least for those last 30 days. तो there is this one thing, our thoughts last 30 days में you will overthink a lot, and that is human nature. And then those thoughts again will create a panic in your head. So instead understand कि your brain is a traffic light, let's say, ठीक है, and ये जो thoughts हैं, these are the cars. ठीक है, तो कार आएगी, रेड लाइट है, दीज आर द थॉट्स जो कि प्रोबेबली विल स्टे इन योर हेड फॉर मोर देन अ मिनट बिकॉज द ट्रैफिक लाइट वाज रेड. But eventually the traffic light will turn green and the car is going to pass away. They are not going to stay there when the traffic light is green. So treat those thoughts as car. आया thought is not a bad thing, but let it pass. वो ट्रैफिक लाइट इरिटेट होता है ना 180 सेकेंड वाली ट्रैफिक लाइट से, keep it the 60-second one, keep it the 30-second one. Let all these thoughts, let all these cars pass. तो last 30 days में मतलब हाँ, because you need to मतलब remember यार कि यार emotions will change but eventually it is the result that will stay. So you can't afford to be too emotional is something I would say. Okay. So, Shatakshi, my next question is, what's something you used to believe about studying or success that experience proved wrong? Like 12th के बाद हम बोलते हैं लाइफ सेट हो जाएगी फाउंडेशन के बाद, पर फाउंडेशन में आकर That लाइक as such, रियलिटी चेक that हो जाता है. success will get you बहुत ऐसे happiness वगैरह, life एकदम change हो जाएगा. Like if you get a rank, probably I don't know, even I had this thing that there will be a lot of meteors. ऐसा कुछ नहीं हो रहा है.
the life is still the same. ऐसे कुछ, even like I spoke to Kusha after result personally also, and I remember having this conversation, and she was like, Satakshi, now all these ranks and courses and everything, कैसा लग रहा है? And I remember मैंने यही बोला था ना कि यार मैं प्रोसेस कर रही हूँ, ऐसे समझ नहीं आ रहा है अभी भी डिफरेंस, क्योंकि I used to wake up in the same bed yesterday also, waking up in the same bed tomorrow, going to the same office yesterday, going to the same office tomorrow. So as such नहीं है, हाँ, people congratulating you, you probably get much more respect, but nothing as such changes. But apart from that, like a misconception I genuinely believed was ki, okay, like if I could stay motivated most of the times. So it is like I always thought कि हाँ, जब motivated लोग हैं ना, they win. So every morning I earlier used to had like some years ago कि रोज ना सुबह एक मोटिवेशनल संदीप महेश्वरी का एक पहले 1 घंटे का पॉडकास्ट सुनती हूँ, सो पूरा दिन अच्छा जाएगा, so that पूरा दिन I can be motivated. But that is not how it works now. I feel कि motivation is again very temporary in nature. Habits, discipline is again something permanent. So it is not the person who is going to win. Like the most motivated person does not win. It is about the person who unmotivated. If you can stick to your routine, even on the days I'm not feeling good, if I'm showing up at 8 o'clock at work, coming back at 6, then studying, then doing lectures, and this I'm not doing it on motivated days because those are going to be very less in number. If I can make this a habit, then I'm good to go. So you don't need to be like great every day. It should not be like कि 1 घंटा 12 एक दिन 12 घंटा पढ़ा, एक दिन 3 ही घंटा पढ़ा, रोज 8 घंटा पढ़ लो ना. So you don't need to be like great every day, but you need to show up every day at least. So consistency, discipline, there are a lot of synonyms, a lot of words for it. So sticking by those words is what is important. Motivation is honestly like just a scam. नहीं, that does not work. You cannot listen to motivational videos, podcast. एक दिन काम करोगे, next day क्या? That does not work. And उसमें you invest your half an hour, you invest your 1 hour. That is a lot. So yeah. Completely agreed, Sakshi. ये motivational podcast वाला thing is something I also tried this year, but it does not work out. So, Exactly. okay. So, my next question is like, you were pursuing 3 courses simultaneously. So, बोलने में it's easier said than done, and there must have been many highs and lows throughout this journey. So, was there ever a point where you thought of quitting one of the courses? And if yes, if there was such a point, then what happened and what was that one thing that stopped you from walking away? Thought of quitting the courses was something, मतलब then वो ट्रैफिक लाइट की तरह, कार की तरह आया गया होगा बहुत बार कि रात को आज नहीं पढ़ना हो रहा है, बस हो गया वाला. But was it a thought I had actually ever considered? No. It was never like a strong feeling or something कि यार course drop करना है. Because it is like I am personally someone also कि once you sign up for it, once I'm in, I'm all in for anything, not just the course. Once I'm in, even in friendships and whatever, if I'm in, I'm all in. तो एक बार कोर्स के लिए साइन अप किया है, करना है तो करना है. देयर वाज लाइक दिस वन टाइम आई फेल्ट because while giving my CS professional exams, I had actually lost my grandmother. तो उस टाइम पर एंड विद इन लाइक अ गैप ऑफ 3-4 days my CA में इंटर was going to start. So तब I did feel like कि probably I should go for her riots and something and skip the CMA inter का attempt. But then the thought that made me stay back was also that she would love it if I could clear CMA inter and CS professional together. So that was like probably the moment when the thought ever stayed. Otherwise आता था thought, वो traffic light की तरह आता था और जाता था, but never actually considered it, I would say. Okay. So, Shatakshi, my next question is like, what is the most irrational thing you did for your exam, or something that you would not recommend to others? Staying up long hours before your exam. So I did it only once. And इसलिए I genuinely do not recommend it. मैंने भी एक ही बार किया था, बहुत जरूरत थी समझो थोड़ा इसलिए, बाकी नहीं. सो इट वाज बेसिकली मेरा अभी FR का पेपर, इट वाज 3rd September को, CA फाइनल का. तो बहुत ज्यादा आई वाज वही लैगिंग, मेरा प्लान्ड शेड्यूल के हिसाब से नहीं चल रहा था सिलेबस. सो आई वाज लैगिंग अ लॉट, आई वुड से. तो FR के पहले आई वाज लाइक अप फॉर आई गेस 42 hours ऑलमोस्ट. तो
एंड उसमें वही तो बिफोर पेपर ना मेरा ऐसे रात को 12 बजे अराउंड खत्म हुआ था, 12-2 बजे सिलेबस। ठीक है, एंड आई कुड हैव स्लेप्ट तुरंत तभी, क्योंकि पेपर तो हमारे दिन में 2 बजे होता है ना। बट मेरा मॉक लिखना रह गया था। तो आई हैड, बिकॉज आई एम समवन, आई हैव बीन फाउंडेशन से कि हर एग्जाम के पहले कंपलसरी में आई राइट मिनिमम 2 मॉक्स, वाईसीआई जो निकालते हैं वही वाले, है ना। सो मैंने एक लिखा था एफआर का, एंड आई नॉट रिटर्न द सेकेंड वन। So at 2 o'clock के बाद at 3 o'clock I sat and I wrote the mock two of FR, 3 to 6 इस तरह से. So probably maybe I should have slept during that time, but then again it like was, करना था तो करना था तभी, कि ठीक है थोड़ा सा कम सोएंगे, क्या हो जाएगा मतलब यार, है ना. सो समथिंग आई डू नॉट recommend because it could cause you severe stress during the examination if you're not sleeping for that long. बट कभी कभी कुछ, आई एम अ लॉ टीचर, एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस के बिना लॉ नहीं बनता. सो अगेन कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में चलता है जगना, बट अदर देन दैट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप इतना कि 48 आवर्स आप एग्जाम से पहले नहीं सो रहे हो, इज नॉट समथिंग आई वुड रिकमेंड. Okay, glad we cleared that up because बहुत सारे students ने पूछा था कि how do you manage your sleep schedule and how much should they be sleeping? So, okay, understood. So, my next question is, supposing there's a student here who's already faced 2 or 3 failures and their confidence is low, what would you be your advice for them? Items ना, अरे हाँ, इसमें ना बेसिकली आई हैव लाइक had obviously some of my friends who have faced this, so they always felt like even क्या होता था ना इंटर में, there are some of my friends उनको 2 से 3 अटेम्प्ट लगे, and now when they attempt final for the first time, they are scared of those people who are giving final but have clear inter in the first attempt. तो दिमाग में सोच के बैठे हैं कि जिनका इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ ना वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है. So what you need to understand is na कि your attempts are not your failures, they are your experiences. So you have made certain mistakes in inter के attempt. ठीक है, तुम्हें exactly पता है क्या नहीं करना था और क्या करना है, because that would be the difference between your past attempts and the attempt in which you cleared. But फर्स्ट रैंक वाला है, उसे तो सिर्फ इतना पता है क्या करना है, देन क्या नहीं करना है. So you need to look at your attempts as your experience points. When you enter that exam hall, फर्स्ट अटेम्प्ट वालों से ना एक्चुअली सीनियर हो, क्योंकि शायद नॉलेज तो सेम घुस रहे हो उस एग्जाम हॉल में, बट यू हैव मोर एक्सपीरियंस, यू हैव रेड चैप्टर प्रोबेबली 2 to 3 times. फर्स्ट क्या पढ़ा है क्योंकि वो अभी जस्ट करके आया है, सो यू आर मच मोर थरो विद द कॉन्सेप्ट प्रोबेबली, राइट. तो स्टॉप लुकिंग एट इट एज लाइक समथिंग दैट इज टू योर डिसएडवांटेज, वो वीकनेस को स्ट्रेंथ ही बना लो ना. सो लुक अटेम्प्ट्स की यार, ओके मैंने ये एक्सपीरियंस गेन किया है, अब मुझे एग्जैक्टली exactly पता है क्या नहीं करना है. सो डेफिनेटली यू हैव, यू आर नॉट अबव द फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, वो experience है, उसको यूज करो. एंड गिव अप, थॉट गिविंग अप. डोंट फील लाइक 2-3 अटेम्प्ट हो गया, नहीं हो पा रहा है, 2-3 अटेम्प्ट हो गया और एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं आपके पास, यूज देम टू योर एडवांटेज. मैंने एक बार समथिंग थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, तो शायद ये एडिट में काट देना, तो मैं भूल देती हूँ. ठीक है, तो एडिट में संभाल लोगे तुम लोग. आई एम ट्रस्टिंग यू गाइज ऑन दिस, बट देयर वाज दिस वन लाइन आई हर्ड कि straight roads don't make good drivers, clear skies don't make good pilots, and first attempts necessarily do not make good chartered accountants because it has like straight road. तो I said necessarily, ऐसा नहीं है. They do make good chartered accountants, you can look at me always, but apart from that, so maybe अगर work कर रहे हैं तुम्हारे लिए, use this line to your benefit, use this line to your advantage, and think of it as experience. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं लगता ये लाइन एडिट करनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं है. And my favorite question comes like teaching is often seen as an uncertain or risky career. Why did you still choose to go into teaching and what made you confident? Risk है बस, टीचिंग उतना, इट इज, इट वाज ऑलवेज अबाउट द पैशन. मैंने क्योंकि जैसे आई शेयर्ड माय स्टोरी कि वो 6 स्टैंडर्ड में इतना मजा आया था ना वो चीज करके, कि आई थॉट कि ये चीज मैं अगर लाइफ टाइम करूँ और मुझे इसके पैसे मिले तो
क्या लाइफ होगी? So it is about that passion. I am blessed to, come from a background where I have that cushion to land on ki, okay, even if this does not work out for me, it is not like I have a lot of responsibility. So I do acknowledge that I'm very blessed in that sense. But apart from that, teaching was always out of passion, I would say. कि हमेशा मतलब यार पता था कि मजा आ रहा है करने में. प्लस इट इज, आई जेन्युइनली आई फील बहुत बार लोग ये चीज शायद स्टूडेंट्स सुनते हैं ना तो उन्हें लगता है कि फैकल्टीज बोलने के लिए बोल रहे हैं. बट जेन्युइनली आई हैव रियलाइज दिस कि टीचिंग में योर एक्चुअल इनकम इज नेवर व्हाट यू आर गेटिंग इन योर बैंक अकाउंट. It is when the student actually comes and tells you, you hate this. Because of you, I could do this. They appreciate you. That appreciation is the only income that you care about when you're in teaching. So that is like a very big factor. I feel it earns you a lot of respect as your income. Again, teaching mein. So risk, probably, I don't know when you say risk, what sense you call it in. But probably if it is financially, I am blessed again to never have those issues in my life. Apart from that, कि हाँ risk है तो जॉब में भी है. What if I do not perform well? What if my manager is always unhappy with me? तुम लोग नहीं कर रहे हो आर्टिकलशिप में, है तुम्हारा मैनेजर खुश, कर पा रहे हो उसे खुश? तो रिस्क तो हर चीज में ही है. जॉब करो, बिजनेस करोगे, बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की है. इट इज समथिंग, रिस्क थिंग you're doing. रिस्क आप हमेशा कैलकुलेट करोगे if it is worth it or not. अगर आप पैशन के लिए आप कर रहे हो ना, आप बहुत ज्यादा रिस्क उठाओगे. बट जॉब में व्हेन यू आर नॉट डूइंग इट आउट ऑफ पैशन, आपको थोड़ा रिस्क भी बहुत लगेगा. सो इट इज ऑलवेज अबाउट फाइंडिंग समथिंग दैट इज वर्थ इट. सो एंड confidence teaching something, the confidence is something when you find, it is something you build over the period of time with the response you get internally. अब आज के टाइम में when I take a lecture, so there are days जहाँ मुझे खुद समझ जाता है कि यार आज का लेक्चर शायद I did not deliver it that well. So even before the student comes and tell me कि मैम आज आपको कुछ हुआ है क्या, आप नहीं उतना लग रहे थे हमें, even before they come and they tell me this, मुझे भी कहीं ना कहीं पता होता है that I did not deliver it the way I usually do. So confidence is something you build over the period of time. Okay, got it, Satakshi. So, my next question is, if a student feels that they might want to get into teaching in the future, what are some small habits they can start building on right now to build a foundation? And also, because I think we will have some extra time, you can also share thoda sa about your journey of teaching. Like, how did you start teaching CA, CMA, or CA students? तो बेसिकली एज अ स्टूडेंट, अगर आप अभी से सोच पा रहे हो ना कि आपको टीचिंग में आना है, so the benefit you are going to have over other faculties, established faculties in market is कि तुम जस्ट स्टूडेंट माइंडसेट समझ के निकले हो. ठीक है, यू हैव जस्ट, यू आर स्टिल अ स्टूडेंट, स्पेशली if you are saying कि अगर स्टूडेंट सोच रहे हैं तो यू आर अ स्टूडेंट. सो व्हेन यू आर लर्निंग फ्रॉम सम फैकल्टी, बी इट हुएवर, तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, या जो भी सब्जेक्ट है आप सोच रहे हो कि मैं ये पढ़ाऊंगा, कि ये सब्जेक्ट में एज अ स्टूडेंट आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, वाई आर यू नॉट एबल टू स्कोर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो दैट स्टूडेंट माइंडसेट, दैट क्लोजनेस टू अदर स्टूडेंट्स इज गोइंग टू बी योर बिगेस्ट ब्लेसिंग राइट नाउ. ठीक है, तो सबसे पहले तो ना अपने, कहीं पर यू कैन स्टार्ट नोटिंग इट ऑल्सो कि यार एग्जैक्टली स्टूडेंट्स पीओवी में हाउ इज द सब्जेक्ट. तो यू व्हेन यू स्टार्ट टीचिंग एक्चुअली यू विल हैव अ बेटर कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, start using your students POV. Second you can work on is notes, because हम लोग को वही आदत है ना फैकल्टीज के नोट्स यूज करने की. बट व्हेन यू कम इनटू टीचिंग यू कैन नॉट जस्ट कॉपी देयर नोट्स, तुम उनके नोट्स नहीं यूज कर सकते हो. सो आज से ही कि तुम्हें नोट्स किस तरह से बनाने हैं, व्हाट यू मेक नोट्स जिससे तुम्हें कॉन्सेप्ट इजीली एक्सप्लेन कर पाओ तुम खुद को वन डे बिफोर एग्जाम. तो इफ योर नोट्स आर एबल टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट इजीली, वो शायद बाकी तुम्हारे आगे वाले स्टूडेंट्स को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे इजीली. सो यू कैन स्टार्ट ऑन नोट्स मेकिंग. उसके अलावा what subject you are picking up, always ask the why, not about the subject, about the concepts. कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे लॉ पढ़ाना है, सो व्हेन आई वुड रीड सेक्शन, प्रोविजन तो हम सब पढ़ते हैं कि अच्छा ये प्रोविजन है, सपोज फॉर एग्जाम्पल वेरी कॉमन ऑडिटर्स रोटेशन. ठीक है, सो ऑडिटर्स रोटेशन के बारे में हम सब पढ़ते हैं.
But why was the need to bring this section Companies Act 2013? 1956 में एग्जिस्ट नहीं करता था, ये 2013 में आया था। क्यों आया? ये एग्जाम में कभी नहीं पूछने वाले। दिस इज अ क्वेश्चन एग्जाम क्यों पढ़ रहा है, वो कभी नहीं पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा? वो एग्जाम में कभी नहीं आएगा। सो एज अ टीचर यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड। सब्जेक्ट को यू विल नीड टू स्टडी मच मोर डीपली देन अदर पीपल। बहुत बार फैकल्टी ने जो डिलीवर किया, मैंने कहा एज इट इज उन्होंने डिलीवर किया, बट एज अ फैकल्टी वी अंडरस्टैंड कि जब हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा रहे हैं, जो फैकल्टी आपके सामने खड़ा है ना, उसने कंपनीज एक्ट 1956 भी पढ़ा होगा, इवन तो वो उसके सिलेबस में कभी नहीं था। सो दैट दे कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि वो क्यों आया, एंड देन दे विल हैव दैट ग्रिप ऑन देयर प्रोविजंस कि वो जो पढ़ा रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो नाउ व्हेन यू आर अ स्टूडेंट यू नीड टू आस्क दैट व्हाई टू योर फैकल्टी, या फिर गो सर्च इट, गूगल है, चैट जीपीटी है, कहीं भी सर्च इट, ऑलवेज नो दैट व्हाई, हैव अ क्यूरियस माइंड अबाउट इट। एंड लास्टली समथिंग यू कैन वर्क ऑन इज ऑल्सो पब्लिक स्पीकिंग, बिकॉज आई नो मेनी पीपल कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है, वो अकेले में वन ऑन वन बैठ के समझाएगा तो बहुत अच्छा समझाएगा, बट कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ क्लास। सो दैट इज एक्चुअली वेरी सैड टू सी, बिकॉज बहुत सारे अच्छे फैकल्टीज वी लूज एज स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ दिस वन प्रॉब्लम, पब्लिक स्पीकिंग। तो इवेंट्स, जम्मू कश्मीर ब्रांच राइट हियर, ठीक है, जो भी आपके विकासा निकासा इकासा आप जहां से भी हो, यू कैन ऑलवेज अटेंड दीज इवेंट्स, नेटवर्क एंड लर्न पब्लिक स्पीकिंग। गो अप्रोच पीपल, पेपर प्रेजेंटेशंस करो, बट लर्न पब्लिक स्पीकिंग वेरी, बात नहीं होती इसके बारे में बिकॉज कभी भी एकेडमिकली नहीं दिखती। एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग यू नो, सीए वर्सेस एमबीए के कंपैरिजन होते रहते हैं। एमबीए के पास क्या है एक्स्ट्रा? प्रेजेंटेशन, उन्हें पिच करना सिखा रहे हैं कॉलेज में, विच इज समथिंग जो सीएस कोर्स में, सीए कोर्स में नहीं है, इवन सीएस वगैरह। एंड उसी के लिए हम लोगों को क्या बना के दिया, वो 15 डेज का जीएमसीएस। बट वो 15 डेज में हम प्लानिंग करते हैं ऐसे 1.5 डे का लीव का 2 डेज कर लिया, थोड़ा सा हम झगड़ा करेंगे तो 2 डेज में मिल जाएगी। जाओ ना 15 डेज, नेटवर्क देयर, पब्लिक स्पीकिंग सीखो, डू ऑल दीज थिंग्स। तो अगर टीचिंग में आना है, पब्लिक स्पीकिंग इज गोइंग टू बी योर नॉन नेगोशिएबल। इफ यू कैन नॉट कनेक्ट विद स्टूडेंट्स, इफ यू कैन नॉट स्टैंड ऑन दैट स्टेज एंड हैव अ कमांड, तुम्हारा नॉलेज वेस्ट हो जाएगा। सो नोट मेकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, आस्किंग द व्हाई आर फ्यू थिंग्स दैट आज से ही, आज स्टूडेंट्स यू कैन स्टार्ट इफ यू वांट टू गेट इनटू टीचिंग इवेंचुअली। Ask Okay, me something else, so na? Yeah, about how your teaching journey started. Like not starting wala, as in हाँ, first came in so CS. it was there, it was always a part of me, I would say. सिक्स्थ में, फिर सेवेंथ एट में was like, you know, 2-3 बच्चे ऐसे कर करके थोड़ा बहुत घर पे, I was always connected to it, I would say. Even when I was in 11th standard, तो मेरे को ना कॉमर्स लेके मजा आया बहुत, सब्जेक्ट्स पढ़ने में। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही एंड ऑल ना, यूट्यूब वगैरह से मैंने 11th और 12th ऑलमोस्ट दोनों साल का पढ़ लिया था 11th में। एंड देन आई वॉज फ्रॉम 12th का कोविड बैच, तो वी नेवर वेंट टू द स्कूल। 12th स्टैंडर्ड हमारा घर पे ही हुआ पूरा ऑनलाइन, ठीक है। तो घर पे क्योंकि टाइम ज्यादा था ना, तो मेरा सीए फाउंडेशन का मैंने किया साथ साथ में, तो आई वॉज अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मच बेटर। सो इन 12th स्टैंडर्ड आई टुक ट्यूशंस फॉर 11th एंड 12th बोथ, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। मैंने 11 12 दोनों उस टाइम पर पढ़ा है। देन फिर आई का कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम टीचिंग बिकॉज सीए फाउंडेशन इंटर के साथ मैनेज नहीं, एक भी बच्चा पढ़ाना नहीं पॉसिबल था उस टाइम पर। देन गॉट इनटू ग्रैंड थॉर्टन articleship. So I did 1.5 years of my articleship from Grant Thornton. And then there were clashes due to मेरा, because I was doing CS as well. So timings, dates and all बहुत ज़्यादा clash होने लगा था. So I decided कि I will shift to a small size firm. So because of small size firm, then I started teaching part time for CA inter. So I सुबह like from the slot 7 to 10 I used to teach. Then 11 बजे ऑफिस जाके शाम को ऑफिस 8 बजे तक, एंड देन फिर रात को आके आई वुड स्टडी मेरा खुद से। So teaching was something कि थोड़ा बीच में 1.5 year I was out of touch, but apart from that, probably 10 standards I was always in touch of teaching. okay. So, Shatakshi, my last question is from my side. As a mentor and faculty, what is one thing that you have learned from your students in respect of hard work, privilege, or consistency?
One thing, मेरा ना एक 15 days around, I don't know, he's not exactly my student, but there was one of the people he connected with me through Topmate का. I got a booking on Topmate कि for the next morning a call was scheduled. So I was like, okay. So I joined the call, and when the video opened, so there was a man. He would be like around, I did not ask him his age, but he would be 40 to 42. So initially I thought he might be asking for his son. उनको उनके लिए गाइडेंस चाहिए होगा. But he wanted guidance for himself. He wanted to pursue chartered accountancy when he was after 12th. But due to certain reasons, he could not do it back then. And now he is like at a good position in a well established organization. But he wants to restart his journey. So, CA Inter se he is restarting. So, when I was listening to him, and even for a minute, he was not shy in that entire call. He was very clear. He was like, आप मुझे बताओ, आप मुझे टारगेट्स दो, आप मेरा प्लानर बना के दो, एंड किस तरह से पढ़ना है, यू जस्ट गाइड मी एंड आई विल डू वॉट एवर यू से, एवरी स्टेप ऑफ इट आई एम गोइंग टू फॉलो इट. He did not feel like ki, oh, I'm this age, so is it not nice for me, is this, we have all these thoughts. He was very dedicated. The perseverance in him was unmatched that I have ever seen in my entire life. So probably that was something कि I felt उस दिन कि यार हम लोग बहुत डंपर होते हैं, या हम लोग ऐसे लगने लगता है हम लाइफ में बहुत पीछे रह गए. बट द फैक्ट कि हम 12th के बाद, या एटलीस्ट डायरेक्ट एंट्री में भी हम ग्रेजुएशन के बाद सीए कर रहे हैं. There are people who had circumstances so beyond their control that they could not do CA after their 12th, yeah, BCom when it was supposed to be done. But the fact that it is such a dream, we had so many examples even recently. CA Tarachand Agrawal, he cleared, I guess, at 70 or 80 something, right? So there have been so many examples also recently कि यार there is no age for following when it is your dream. No one is going to do CA at 50 to make a career in it. If someone is doing 50 pe CA now, it is only out of passion, it is only out of dream. So that is something I just realized that day, I would say. Ki yaar, we do not even consider it as a privilege properly, but it is a privilege of being able to follow our passion, given the chance to follow our dream at the right age. बाकी मेरे स्टूडेंट्स, आई नो आई हैव a generational gap with my students. I genuinely do. वो are these are so many Gen Z terms I have been learning lately. मैं क्लास में जाती हूँ and there are, these students, some of my students in my class are because actually older than me, and they are out there teaching me कि अरे मैम आजकल ना इंस्टाग्राम पे ये ट्रेंड आया है, और they will crack some joke between themselves and they will expect me to understand it, and then I'll be like कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो. They're like अरे आप इंस्टाग्राम, आप ये देखो ना, आप हो तो इंस्टाग्राम पे, आप ये. And most of the times ना, even when I create some memes or content, recently I uploaded some YouTube short, they are the ones coming to me with ideas कि मैम आप इस पे यूट्यूब रील, आप यूट्यूब शॉर्ट बनाओ, आप इस पे इंस्टा रील बनाओ. तो ये लोग मुझे इस मामले में बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या करना है. सो दे आर वेरी इंथुजियास्टिक दैट वे. Great. Now you're making all of us here feel old, हाँ? हम लोग भी कोविड वाले बैच के ही हैं. But okay, so I do have my last question, but I think because हम थोड़ा time से ahead ही हैं, we can like add 2 or 3 questions if you're okay with that. या Okay, so one of the questions जो भी मेरे mind में आया is कि when you started this journey, CA, CMA, CS वाला, was this always in your mind कि यार मेरे को rank ही लानी है? Like वो target हमेशा set था, या were you only focused on the day कि यार आज का ये काम है, आज का ये काम खत्म करना है, these are the things I have to build on and that's it. तो समथिंग ना, अभी ये मैं आंसर करूंगी ना, यू आर टेकिंग कंटेंट आउट ऑफ माय अपकमिंग यूट्यूब वीडियो, ये मैंने उसमें बात किया था. बट बेसिकली, सो व्हेन आई स्टार्टेड सीए, आई नेवर न्यू आई वाज गोइंग टू डू सीएस या सीएमए. कभी प्लान में नहीं था. सीए इंटर होने के बाद तक भी प्लान नहीं था कि सीएस और सीए में करना है. ठीक है. सो सीएस आई टोल्ड यू बिकॉज सीए इंटर में समझा कि लॉ पसंद आ रहा है, सो आई डिड सीएस. प्लस अगेन नाउ, there is this thing कि when you are doing all this, so especially my this year when I was enrolled for all 3 courses, ठीक है, at the same time, plus the exams were
CS और CA में तो in the same month at the gap of 2 days and CA final at the gap of 2 months from them. So क्या था ना कि now how do you manage all the 3 courses? तो बहुत बार क्या होगा ना कि the subjects kind of similar, not same but similar. So हमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि अरे यार ये AFM का क्वेश्चन है कि कॉस्टिंग का क्वेश्चन है. मुझे तो ये भी कंफ्यूजन होता था कि ये क्वेश्चन CA का है कि CS का है. Even that becomes a chaos in your head. So I was very clear कि अगर multiple courses कर रहे हो तो stick to what course you are studying right now for like a month. So मेरा अगर जून में CS था, so the entire May month I knew that no matter what happens, no matter how much panic I feel about CA final being in September, 3 months away, I will not CA का book. Focus on what you are doing right now. Do not mix up. I personally am someone, I don't even ये होता है क्वेश्चन कि एक दिन में एक सब्जेक्ट उठाएं या 4-5 सब्जेक्ट्स उठाएं. So I was very clear personally what works for me is एक दिन में एक ही सब्जेक्ट, because otherwise I'll get confused. प्लस हम लोग FR पढ़ रहे हैं, बैठ के सोचेंगे अरे ऑडिट का क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बिकॉज तुम FR पढ़ रहे हो इसलिए ऑडिट नहीं याद आ रहा. बट जब एग्जाम में 1.5 days पहले क्या हम ये सोचते हैं कि आज एक सब्जेक्ट पढ़ू या दो. 1.5 days पहले उन्होंने एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है. सो वेन यू आर इन फ्लो ऑफ ऑडिट वो 1.5 days से एग्जाम के दिन ऑडिट याद आएगा. बट अभी FR कर रहे हो क्यों ऑडिट याद आएगा. सो आई हैव बीन समवन 1 day at a time with a course, with even course का particular subject also. 1 day at a time लो. Do not jumble it in your mind. Read your mind. It is a human mind only. You are not a robot. तो human mind है. Our minds are very powerful. But given you need to use them the right way. Keep a structure in your mind. वो डायरेक्शन होना चाहिए एक कि ओके आज मैं CA के डायरेक्शन में हूँ, आज मैं CA में भी टैक्स के डायरेक्शन में हूँ, आज ऑडिट के डायरेक्शन में हूँ. सो आपके जब डायरेक्शंस क्लियर हैं, डू नॉट जंबल थिंग्स अप इन योर हेड. सो 1 day at a time. Got it. And I think teaching wali clarity तो you had from the very beginning Yeah. कि ultimately you want to teach people. So I just want to know कि this entire journey, ये सारे courses करना, articleship करना, these 2, 3, 4 years, how do you think they have shaped you as a person? मतलब apart from the clarity thing, you already had your goal in mind, but how do you think as a person you have grown? Sense of confidence कि you are capable enough of handling now any challenge in your life whatsoever is thrown at you. Even if you know, let's say for example I start a business today, I work on that business for 10 years, it is working very well, and then something beyond my control happens and the business is shut. I won't be scared कि अब मेरे लाइफ में मेरे 10 साल डाले, now I don't know what to do. Because अब CA करने में उतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि यार even if I have to start from the scratch, I will do something good. So CA में plus it teaches you time management, something we do not. academic में नहीं बोल रही हूँ, आपको जो academic सिखाएगा that is तो all bonus. Apart from that, CA will teach you time management. It will teach you जब आपके आसपास हमारे एग्जाम्स देखो ना रखे भी कब थे, नवंबर में एकदम दिवाली के पास, मई में रखते हैं एकदम जब समर वेकेशन चल रही होती है. सो देर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस हैपनिंग यू अराउंड एट दैट टाइम. अक्टूबर नवंबर वाला अटेम्प्ट सबसे ज्यादा था कि अक्टूबर में नवरात्रि, फिर दशहरा, फिर दिवाली, पूरा एकदम फेस्टिव माहौल में आता था वो एग्जाम. अभी तो इट इज बेटर एटलीस्ट सितंबर जान किया है तो. बट इवन नाउ जान अटेम्प्ट, क्रिसमस, न्यू ईयर, एकदम उसके पास में जाके जान अटेम्प्ट. सो व्हाट द कोर्स इज टीचिंग यू ना कि इवन व्हेन यू हैव a lot of distractions around you. Even I have heard this line also कि point क्या है, because कॉलेज में आपको सिखाया जाता है कि कमिटीज में जाओ, बी अ पार्ट ऑफ दिस फेस्ट दैट फेस्ट, एंड CA बताता है कॉलेज ही गलत है. So the point being, it is teaching you when you even have distractions around you, you need to be focused. Because especially as auditors, जो लोगों ने बैंक ऑडिट किया है तो उनको पर्सनली एकदम रिलेट होगा कि बैंक ऑडिट में कितना अच्छा लंच करवाया जाता है. एंड बाय लंच आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट फूड, बिकॉज दैट इज गोइंग टू मेक यू फील स्लीपी थोड़ा सा, है ना. तो इवन व्हेन यू डिस्ट्रैक्टेड, स्टिल वो छोटा माइन्यूट डिटेल भी ना ऑडिट में मिस नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू नीड टू बी उतना फोकस्ड. सो CA कोर्स में these are the small small things that probably don't get accounted for
बट सीखते हो जो आपको आगे लाइफ टाइम धीरे धीरे रियलाइज होगा. आई हैव सम फ्रेंड्स ना, जैसे इंजीनियरिंग में हो गए या यू आर जस्ट डूइंग अ डिग्री कोर्स, दे कैन नॉट स्ट्रेच. बट ना, वो मैं एक बार मेरी दोस्त से बात हो रही थी, ही इज डूइंग बीएफ या कुछ वो कर रहा है, ठीक है, सिर्फ. एंड ही वाज लाइक, आज मैंने बहुत पढ़ा. तो आई आस्क्ड हिम कि क्या सुबह से पढ़ा? नहीं, पिछले 3 घंटे से पढ़ रहा था. ठीक है, गुड मॉर्निंग मतलब. बट अब एग्जैक्टली बिकॉज तुम सब सीए स्टूडेंट्स हो ना, इसलिए यू फाइंडिंग इट फनी. बट अ बीकॉम गाय विल हियर इट, प्रोबेबली उनके लिए नहीं है वो फनी, बिकॉज दे आर यूज टू दैट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल. एज अ सीए स्टूडेंट्स 3 घंटा में लग रहा है, तो जिस दिन नहीं होता है तो हम बोलते हैं आज आज बस 3 ही घंटा पढ़ा, नहीं हो पाई आज पढ़ाई. सो दिस कोर्स इज ऑल्सो टीचिंग यू कि वो आप हार्डवर्क ना आपके लिए रूटीन है. इट इज नॉट समथिंग कि आपको अलग से करना पड़ रहा है. दोज लेट, इवन आपको जब ऑफिस में बिठाया जा रहा है टू मीट डेडलाइंस, आप पे उतना प्रेशर क्यों? 1.5 डे का गैप रखा है इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि आपके जब डेडलाइंस आएंगे ना आईटीआर के 31 जुलाई, या फिर आपका 31 अक्टूबर, है ना. सो अ सीए कैन नॉट गिव अप सेइंग कि अरे यार बहुत कम टाइम है, मैं नहीं कर सकता. आप 1.5 डे में गिव अप नहीं करते हो कि अरे 1.5 डे बहुत टाइम है, सिलेबस नहीं हो सकता. आप उस 1.5 डे में अपनी पूरी जान लगा देते हो, एंड यू डिलीवर ऑन द डेडलाइन ऑफ द 2 PM एग्जाम हॉल में जाके. तो आपको वही डेडलाइंस डिलीवर करने हैं टू द गवर्नमेंट. व्हेन पीएम इज सेइंग इतनी बड़ी लाइन कि मेरे साइन का वैल्यू उतना नहीं है जितना एक सीए के साइन का है, so that is like the utmost level of responsibility that the government is putting on you. So when they are giving with great power comes great responsibility. When उतना आपको पावर दिया जा रहा है तो उतनी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. सो यू लर्न ऑल दैट while being a student in the course, कि जहाँ पे आप आर्टिकलशिप प्लस पढ़ाई सेम डे पे मैनेज करो. बाकी किसी कोर्स में नहीं है. इंटर्नशिप पढ़ते नहीं है वो पर इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सीए में हो रहा है कि दोनों साथ में कर रहे हैं. So it is a very good thing also that we are learning. True, very true. And I think the PM वाला line, that line alone can, I think वो सबको motivate कर सकती है Yes. एक ही बार में. हाँ, सब यूट्यूब शॉर्ट्स हर जगह वो लाइन अभी भी, आज भी हर सीए डे पे वो लाइन चलाई जा रही है. एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट. एंड पीएम है, सो ही डिड नॉट जस्ट से इट. उनके पास कोई रीजन नहीं है टू मेक यू फील गुड अबाउट एनीथिंग. व्हेन ही इज सेइंग समथिंग ही मीन्स इट. True, true, very true. Okay, so another question is, like, if possible, can you give us a brief about what was your routine during जो वो सीए का study leave होता है ना, right after your articleship is done, उसमें आपका क्या डेली रूटीन होता था, लाइक मॉर्निंग से लेके रात तक? आई हैड कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड, बिकॉज क्या है ना रूटीन में, इट इज यू फिक्स अ टाइम, इतने बजे सोना है, सपोज 10 बजे, ठीक है, एंड देन यू विल टेल योरसेल्फ 6 बजे उठना है, फिर पढ़ना है, फिर ये करना है वो करना है, ठीक है. आई वॉज वेरी क्लियर, आई विल नॉट हैव अ टाइम दैट आई विल गो टू स्लीप एट. आप अगर मेरा फोन देखोगे, अगर होता है, अगर हमें हमें किसी दिन बनाऊंगी व्हाट्स इन माई फोन वाला वीडियो, एंड आई विल शो द अलार्म्स वाला ऐप, तो यू विल सी आई विल हैव लाइक 50-55 अलार्म्स राइट नाउ, अलग अलग टाइमिंग्स के. बिकॉज देयर विल बी डेज आई हैव स्लेप्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग. सो मेरा ये था कि, एंड 7 o'clock क्यों है, इट वॉज नेवर फिक्स्ड. जब तक ऐसा नहीं लग रहा कि अब आंख नहीं खुली रह सकती, 7 बजे नींद ली. अब वहां से आई हूँ कि वेन एवर आई एम स्लीपिंग, वहां से 4 या 6 घंटे का, डिपेंडिंग ऑन कि मैं कितना टाइम से इससे पहले जग रही थी, आई यूज टू कीप एन अलार्म. ठीक है, सो 4 या 6 घंटे विच एवर इट इज, आई कीप अलार्म, आई विल वेक अप, आई विल स्टार्ट स्टडिंग अगेन. एंड देन मुझे वापस नेक्स्ट नींद जब करेगी, फिर इट विल नेसेसरली बी 7 o'clock, प्रोबेबली 11 o'clock ऑफ द नेक्स्ट डे मैं कब सोऊंगी. सो अगर पूरे दिन का ब्रेक इट इन 24 hours. But there were a few things जो स्टडी लीव में I was very clear, because अब मेरे पे कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है टू रिपोर्ट एनीवेयर. ठीक है, देर इज नो टाइम, जब बहुत ज्यादा नींद आ रही है सो जाओ, वहां से अलार्म लगाया. एंड बिकॉज इसमें मेरे को क्योंकि समझ आता था ना, मैं भी पहले थी, लिखती थी 10 बजे सोना है, फिर 6 बजे उठना है. बट 10 बजे मैं सोने गई, मुझे नींद ही नहीं आ रही है, मैं 12 बजे तक आंख बंद करके लेटी हूँ बेड पे. सो आई हैव वेस्टेड 2 productive hours ऑफ माई लाइफ. सो डोंट, वो स्टडी लीव में यू कैन नॉट अफोर्ड दैट. एंड फिर भी नहीं खुलेगी. अब सो जब सोना है,
I have completely taken out of my mind कि अरे यार, इट इज अ बैड थिंग कि रात तक जग रहे हो. क्या हो गया रात तक जग रहे हो? पूरा दिन सुबह जगो, जब जगना है तब. देयर वर टाइम्स आई वाज यूज्ड गो टू स्लीप एट 4 p.m. ऑन. इट इज अ वेरी ऑड टाइमिंग, but it worked for me. So I was very clear with a few activities कि यार, I'm someone, when you wake up, हम लोग freshen up, have a bath and then sit to study. I feel that is a very wrong thing to do. आप अभी उठे हो, आप फ्रेश हो माइंड से, why do you need to take a bath? 3 घंटे पढ़ो, then you will feel tired, then go take a bath. क्योंकि 3 घंटे बाद आपको ब्रेक वैसे भी लेना था, तो पढ़ाई भी हो जाएगी ना. इस तरीके से ब्रेकिंग हो गया प्रोडक्टिव आवर्स, अनप्रोडक्टिव आवर्स. And then finding a schedule. So schedule again need not be necessarily. अब आप मुझे एक चीज बोल सकते हो कि यार थोड़ी देर पहले स्पोक अबाउट हैबिट्स. हैबिट्स काम करेंगे एग्जैक्टली ऑन द डेज ऑफ आर्टिकलशिप, व्हेन यू आर टू रिपोर्ट एट 8 o'clock, व्हेन यू आर टू रिपोर्ट एट 9 o'clock. उसके बाद आप 3 घंटा आगे पढ़ना है. बट जब आप स्टडी लीव में हो, हैबिट है कि मुझे पढ़ना है, दैट इज द ओनली हैबिट यू कैन अफोर्ड हैव. स्टडी लीव में स्टार्ट हुआ अगर 4 months का है, आई सपोर्ट कि अच्छा आपको मेडिटेशन करनी है, करो. आई डोंट नो, बट मेडिटेशन आई सीन सम स्टूडेंट्स क्या किए, सुबह उठे 8 बजे, ठीक है, आधा घंटा फ्रेशन अप हुए, फिर ना 8:30 to 9:30 हमने मेडिटेशन किया, फिर 9:30 to 2 वी टुक अ बाथ, 10:30 वी हैड ब्रेकफास्ट, एंड 30 को हम पढ़ने बैठेंगे. और आप उठे कब थे? 7:30, 8:30. आप कर रहे हो मेडिटेशन इज समथिंग, रात को सोने से पहले 5 to 10 minutes, एटलीस्ट इन माई पर्सनल ओपिनियन, टू बी वेरी ब्लंट. इट कुड नॉट बी समथिंग आप 1 घंटा कर रहे हो आपके स्टडी लीव में माइंड को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि फिर आपका माइंड पैनिक में इसीलिए है क्योंकि आप उतना घंटा पढ़ नहीं रहे हो, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है. तो आप प्रॉब्लली उतना घंटा पढ़ोगे तो माइंड पैनिक ही नहीं होगा ना मेडिटेशन की जरूरत पड़ने के लिए. तो मेडिटेशन, आपकी वॉट एवर फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह है, बी वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ देम. यू कैन नॉट बी लाइक कि हाँ 1 घंटा आज मैं वॉक करके आया हूँ और समथिंग. आई हैव हर्ड इट इन मेनी इंटरव्यूज, प्रोबेबली इट कुड वर्क फॉर समवन जिसमें फिर आप बहुत वैसे, बिकॉज हम लोगों का, मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स का सुना है 4 महीना बचा है, अभी तक रिविजन नहीं हुआ है, ये सिलेबस बाकी है, वो सिलेबस बाकी है. सो यू आर नॉट इन दैट पोजिशन. इफ यू वुड एक्चुअली हियर, मैंने जैसे कुछ मेरे टाइम पे भी रैंकर्स के इंटरव्यू सुने थे, उनकी, मैं तो जब मेरी फर्स्ट लेक्चर देखना स्टार्ट कर रही थी, देवर लाइक कि इस टाइम तक तो हमारा फर्स्ट रिविजन हो गया था. सो वेरी गुड रीजन फॉर मी टू पैनिक. बट मैंने हमेशा मेरी आवर्स भी इसलिए कैलकुलेट किए कि यार, इफ नॉर्मल पर्सन स्टडीज 7 hours a डे, एंड अगर आज मैं 14 hours पढ़ पाऊँ, सो मेरा एक दिन मतलब उस इंसान का 2 दिन. So, उस इंसान, हाँ सही बोला ना मैंने, मैथ्स है ना. तो मैं अगर 2 महीने में जो पढ़ूंगी, वो इंसान 4 महीने में पढ़ रहा है. तो मैं इसलिए कम प्रोबेबली कोर्स क्लियर कर रही हूँ, बिकॉज मैंने अनप्रोडक्टिव आवर्स उस लेवल तक हटा दिए हैं. इंस्टाग्राम मेरे लास्ट 4 months डीएक्टिवेटेड था. जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ, शाम को आई वॉज ऑन इंस्टाग्राम, आई वॉज बैक, बिकॉज आई एम समवन, आई लव स्क्रोलिंग रील्स, आई लव इट, आई लव पोस्टिंग स्टोरीज, है ना. बट वो 4 महीना आई न्यू कि नहीं. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स. ऑल्सो यू कैन ऑलवेज फॉलो द कॉन्सेप्ट डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि समथिंग अ लॉट. फॉर एग्जाम्पल, लाइक इफ आई लाइक वॉफल अ लॉट, तो मैं बोल दूंगी कि 4 महीना वॉफल नहीं खाना है सताक्षी, द डे एग्जाम खत्म होगा यू गो हैव 3 waffles. तो माइंड को उस तरीके से मोटिवेटेड रख सकते हो, आप उस तरीके से अपने लिए डोपामिन आगे के लिए, एंड यू नो इट इज ऑलवेज कि यार कोई चीज होने वाली है, एक्साइटेड अबाउट इट. तो समथिंग ऑन दोज लाइंस, दीज आर सम स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स आई वुड से कि एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव आवर्स वाज द रूटीन. So not a structured routine. So everything that helps me get my studies together was my routine. Got it, got it. So, Jesse, there's a very fine line between unproductivity and between, I think, rest and recovery. So, ऐसी कोई दो तीन activities थी that you used to do on a daily basis so that, burnout ना हो जाए. During the day, you can Listening to music. be I love productive. it. Okay. Listening to music. So मतलब I was someone कि मतलब I would start my day with, मैं motivational, मैंने podcast वगैरह कुछ भी नहीं सुना होगा during those 4 months, but every day I would, there were these certain songs. There is this one song, बंदिया रे बंदिया,
Then there is Kar Har Maidan Fateh. Yeah, there is the Brothers Anthem. I love that a lot. है ना? So these were, sort songs. वो भी था कि जब मैं दिन स्टार्ट करती थी तो आई वुड स्टार्टेड विद ऑल दीज एकदम मोटिवेशनल सॉन्ग्स एंड वो दिन एंड होते होते तक मेरा वो आ जाता था कि देयर इज दिस गाना आई डोंट नो फ्रॉम लुटेरा कि जिंदा हूँ यारो मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे वाला तो वो सॉन्ग्स का लेवल शिफ्ट होता रहता था थ्रू आउट द डे गिवन मैं कितना एनर्जी फील कर रही हूँ समथिंग बट लिसनिंग टू म्यूजिक वाज समथिंग और watching Friends. So I Okay. was very clear, do not start a new series, even for those who want to watch something. Do not start a new series because new series आपके अंदर excitement create करेगा, you would want to binge it. Instead if you watch some series जो आपने पहले से देखा हुआ है, तो आपके अंदर curiosity नहीं है. But you like that series, it would be a good source of enjoyment. So Friends का episode is of 20 minutes. So I know that is like the perfect break time. So watching a show you love or listening to music was something that personally worked for me. Or once in a week, I would go for a walk, but not more than ओके ओके एंड लाइक एक ना बहुत मेजर इशू रहता है आजकल स्टूडेंट्स का अक्रॉस एनी कोर्स देयर इन दिस डायलेमा कि यार अगर हमें रैंक लानी है अगर हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं देन वील हैव टू सैक्रिफाइस सम थिंग्स हो गया जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेंगे मे बी आईसीआई के इवेंट्स में उतना पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बट लाइक इन योर केस आई थिंक फॉर अ शॉर्ट वाइल यू वर ऑल्सो पार्ट ऑफ विकासा राइट यू वर अ complete year, full tenure. Yeah. या सो लाइक कैन यू गिव अस एन आइडिया वो जो एक मिथ होता है ना कि यार अगर मेरे को मार्क्स लाने हैं मेरे को स्टडीज पे फोकस करना है देन आई हैव टू लीव एवरीथिंग एल्स एंड आई फील लाइक उससे एक बहुत वो कम्युनिकेशन वाला एस्पेक्ट दैट यू मेंशन वो बहुत स्टूडेंट्स का मिस आउट हो जाता है सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू देम इज दैट ट्रू You need to prioritize. Plus, एक होता है हर चीज को करने का सही समय होता है. When I was in CM at Vikasa, it was year की हाँ उस टाइम पे मैंने साथ में CS एग्जीक्यूटिव दिया था. I couldn't have been the part of Vikasa in the year 25-26 because this was the year I knew that I need to shut everything down completely. This was my year. But 24-25 was something I knew I can use these networks. I know this is going to be an experience in itself for me. तो एक होता है कि सही समय पे सही चीज करना आप गलत समय पे बिकॉज आई एम समवन आई लव वॉचिंग मूवीज ठीक है आई शुड नो व्हेन टू वॉच दैट मूवी क्या मैं एग्जाम हर मूवी हॉल में जाके देखूं नहीं बट डू आई पनिश माई सेल्फ टू दैट लेवल जहां पे मैं 3 साल मूवी ही ना देखूं फॉर मी टू फील बर्न आउट अ डे बिफोर माई एग्जाम तो सैक्रिफाइसेस भी ना आप कब कर रहे हो किस लेवल पे कर रहे हो बिकॉज ऑनेस्टली डू नॉट पनिश योर सेल्फ ऑन द नेम ऑफ सैक्रिफाइस हम लोग को वो भी फाइन लाइन है बिटवीन अ सैक्रिफाइस एंड पनिशिंग योर सेल्फ ठीक है तो पनिश योरसेल्फ आई वुड से आप अगर खुद को पनिश करोगे सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू जनरेट नेगेटिव हॉर्मोन्स इन योर ब्रेन यू आर ऑलरेडी डूइंग अ हार्ड इनफ कोर्स हमारा प्रॉब्लम है तो है कि हमारे आसपास भी सब सीए स्टूडेंट्स वाले होंगे हमारे दोस्तों में तो जब आप उसको कॉल करते हो तो वो 4-5 घंटा पढ़ रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार मैं इससे तो बहुत कम पढ़ रहा हूँ तो शायद मैं दुनिया में पीछे रह गया हूँ अंडरस्टैंड जो दुनिया का पॉपुलेशन है उसमें से 0.1% सीए कर रहे हैं उनका दिन में 8 घंटा पढ़ना बट जो बाकी दुनिया है उसकी तरफ देखो तुम उससे तो बहुत बेटर कर रहे हो अपनी लाइफ में सो डोंट पनिश सिर्फ ये देख के कि अरे यार सामने वाले का 4 घंटा हुआ है बहुत 4 मिनट नहीं पढ़ पा रहे हैं दिन में वो वेकेशन पे ही है सो इवन टेकिंग वेकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस जब मैं 4 महीने स्टडी लीव पे हूँ आई विल नॉट टेक अ वेकेशन that does not mean कि मेरे जो 2 साल अभी 2 साल पहले 3 साल था कि 3 साल के या 2 साल के आर्टिकलशिप में कभी वेकेशन पे नहीं जाओगे इज रॉन्ग यू नीड टू इवन आई स्पोक टू यू आल्सो कुशा पर्सनली अबाउट दिस राइट तो मैंने वही बोला था कि आप सी फाइनल फॉर सम जस्ट क्लियर इनकम on the CASAs, whichever CASA you are eligible for, network for 1 year. बिकॉज एनीवेज आज अगर आप फाइनल की पढ़ाई चालू करोगे तो आपको याद भी नहीं रहेगा 3 साल बाद का पेपर है वो स्टार्ट योर सीए फाइनल स्टडी only 1 year after your articleship is something I always suggest everyone
बिकॉज इंटर अभी भी तो एक साल इतना पढ़ के आया ना, तुमने इंटर के टाइम पे एक साल चीजें सैक्रिफाइस की होंगी, आई वाज ह्यूमन। 9 months का स्टडी पीरियड है, सो 9 months यू आर स्टडिंग, नाउ गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। इवन मेरा जब सीए फाइनल क्लियर हुआ, आई वाज वेरी क्लियर, नाउ आई नीड अ ब्रेक। आई वॉज वेरी क्लियर, इवन आई टोल्ड माई प्रिंसिपल कि सर मेरे एग्जाम से एक, आपको पता है मेरा एग्जाम 14 को खत्म हो रहा है, मुझे लीव 21 की चाहिए। आई विल नॉट कम टू ऑफिस, 15th वॉज मंडे, बट आई वाज लाइक मैं नहीं आऊंगी 15th को, बिकॉज आई नीड अ ब्रेक एंड डिजर्व अ ब्रेक। सो गिव yourself those breaks, but at ideal time. You cannot be like कि थर्ड एग्जाम में हफ्ते में ब्रेक ले लेती हूँ। यू शुड नो कि 14th हफ्ते बाद आप ब्रेक डिजर्व करते हो। सो वही सैक्रिफाइस पनिशमेंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ करो। Got it. So एक line draw करना and also getting the timing right for everything. Timing is very important. So, if you could challenge every student here to change just one habit for the next 30 days, which habit would it be and why? Why do you think it's a game changer? डिपेंड्स ना, वो 30 days ना आप कब उठा रहे हो आपके लाइफ के। इज इट ऑन अ नॉर्मल डे और इज इट ड्यूरिंग योर स्टडी लीव, बिकॉज वी आर बिटवीन सीए स्टूडेंट्स। सो अगर आप 30 days स्टडी लीव की बात करो, सो मैंने जस्ट अभी जितने सारे पॉइंट्स बोले थे ना, दैट फाइंडिंग कि आपके अनप्रोडक्टिव आवर्स और प्रोडक्टिव आवर्स क्या है, 30 days आप ये करके देखो कि आप अपना रूटीन छोड़ दो। 10 बजे सोना है या सुबह 2 बजे सोना है, आप ये रूटीन छोड़ दो। स्लीप व्हेन यू फील स्लीपी, वेकअप वहां से अलार्म लगा के। even all these things ना, lunch, dinner, taking a bath, these should be your breaks। इन्हें शेड्यूल ही ऐसे करो कि ये ब्रेक्स की जगह पे गिरे। इट शुड नॉट बी लाइक कि अरे यार खाने के बाद पढ़ने बैठूंगा, पढ़ने के बाद ब्रेक लगेगा तब खा लेना। सो थोड़ा सा ब्रूटल ऑन योर सेल्फ, आई वुड से 30 days, बिकॉज इमोशंस का ऑल्सो, जैसे आई स्पोक अर्लियर, कि यू शुड नॉट बी लाइक कि अरे यू डिजर्व अ रेस्ट आफ्टर योर एग्जाम्स, यू डोंट डिजर्व अ रेस्ट बिफोर योर एग्जाम्स। आई एम बीइंग वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट इट, यू डू नॉट डिजर्व अ ब्रेक बिफोर योर एग्जाम्स। पहले एग्जाम्स दे लो, आई एम नॉट इवन सेइंग ठीक है वेट फॉर रिजल्ट्स एंड ऑल, अगर पास हुए तो ही ब्रेक लेना, बट टेक अ ब्रेक आफ्टर योर एग्जाम्स, है ना। इवन नींद का भी देयर आर लॉट ऑफ की सोएंगे तो 12 घंटा सो गए, नहीं तो वो जग ही रहे हैं एकदम अलग। 12 घंटा नहीं सो सकते आप, 12 घंटा नहीं सोना है दिन में, मतलब लिटरली। क्योंकि व्हेन आई गिव माय स्पेशली सीएस का एंड सीएमए के एग्जाम्स, तो देयर वर लाइक 15 एग्जाम्स इन अ स्पैन ऑफ 18 days। तो 15 दिन में पेपर ही लिख रही हूँ 18 में से। तो आज एग्जाम है, कल भी एग्जाम है, सो नॉट इवन लाइक अ 24 hour गैप। तो उस टाइम पे आई वाज स्लीपिंग लाइक 2 to 3 hours अ डे, एंड आई वाज वेरी क्लियर इन माय हेड कि यार या तो नींद पूरी कर सकते हो या आप सपने, तो आप चूज कर लो। सोना है सो जाओ, अगले दिन पेपर में दिखेगा फिर वो चीज। सो अगर आपको 30 days आप स्टडी लीव में हो, तो प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर यू, कि आपने कैसे अपने प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव आवर्स को बाइफोकेट करके आप उस पर काम कर रहे हो। एंड अगर आप नॉर्मल में हो, तो 30 days में बिल्ड स्मॉल स्मॉल हैबिट्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू लॉन्ग टर्म में। जैसे आप, चलो मैं बोल रही हूँ आर्टिकलशिप से बहुत बार आप 10 बजे आते हो घर पे, ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ सकते 3 घंटा, आप आधा घंटा पढ़ो सिर्फ, एटलीस्ट स्टार्ट विद हाफ एन आवर। एंड वही ऑलवेज स्टार्ट विद हाफ एन आवर। तो आज आधा घंटा पढ़ा, नेक्स्ट वीक 1 घंटा पढ़ो। डोंट थिंक कि यार मैं आज से 3 घंटा पढ़ूंगी। आज हाफ एन आवर, फिर 45 मिनट्स, नेक्स्ट वीक 1 hour। स्लोली ग्रेजुअली आप प्रोग्रेस करो, शो अप एवरी डे, कंसिस्टेंट रहोगे ना। अगर 30 days आप कुछ भी चीज के लिए कंसिस्टेंट रहोगे, बेस्ट है। मतलब एंड कुछ भी, मैं आई एक्चुअली मीन कुछ भी, बी इट की यार मुझे ना इवन इस फिजिकल एक्टिविटी में, बी इट अ स्पोर्ट, बी इट एनीथिंग, अगर उसमें भी आप कंसिस्टेंटली हैबिट डेवलप करो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी गुड, अनलेस यू आर गेटिंग इनटू समथिंग एक्सप्लिसिटली बैड। बाकी हर चीज का हैबिट इज ऑलवेज नाइस, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिकॉज बिटवीन हैबिट एंड एडिक्शन। हर चीज की हैबिट अच्छी है, एडिक्शन हर चीज का ही बुरा है, बी इट अ गुड थिंग। सो नॉर्मल वालों के लिए तो जस्ट बिल्ड अ रूटीन 30 days। इसके में अगर हो स्टडी लीव में, खुद के साथ वो ब्रूटल रह के दिखाओ 30 days। वर्क ऑन योर स्लीप, वर्क ऑन योर डाइट एंड एवरीथिंग। अगर 30 days आपने वो सॉर्ट कर लिया, एंड आई एम अज्यूमिंग ये 30 days, तो आपके नेक्स्ट 30 days, अगर 2 months आप पहले हो आपके स्टडी लीव में, एनीवेयर बिफोर दैट, अगर आपके अभी जैसे जान वाले हैं, तो प्लीज ये एडवाइस मत करो तुम्हारे 10 दिन में एग्जाम है, कोई 30 days में कोई हैबिट चेंज मत करो, जो चल रहा है अभी चलने दो।
फॉर मे और आगे के अटेम्प्ट्स वालों के लिए, तो जब स्टडी लीव में जाओगे, try eliminating all these unproductive hours. They are actually going to be a total game changer. Got it, Sakshi. Thank you for that answer. I think we can keep the chat box open for any questions from the audience. Until then, मैं एक बार Google Forms से questions देख लेती हूँ that Sure. people put in. Okay, one student had asked that is there a way, is there any particular technique or a way to change your environment in a sense कि आपका distraction कम हो जाए, particularly with relation to social media and using your phone? हटा दो, डीएक्टिवेट इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स में मैं बताती हूँ, ये मैंने फाइनल के टाइम पे ऑनेस्टली वही नहीं किया था, मैंने इंटर के टाइम पे किया था। तो इंटर के टाइम पे व्हाट आई यूज्ड टू डू ना, स्टडी लीव में मेरा था ही कि आई यूज्ड टू सिट प्रॉपर स्टडी के लिए रात को 11 बजे, एंड मैं सुबह 9 बजे सोने जाती थी। ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा वहां पे रूटीन बना हुआ था, बिकॉज आई एम ऑलवेज समवन, एक नाइट आउल वाला थिंग। प्लस सेकेंडली व्हाट आई फील ना, जब आप दिन भर में पढ़ते हो, 2 बजे या 3 बजे लोग भी जग रहे हैं, पूरी दुनिया जग रही है, लोग ऑनलाइन है, आपको किसी ने मैसेज किया, आप रिप्लाई करोगे, आप बातें करोगे। रात को 12 बजे मेरे से कोई है ही नहीं बात करने के लिए, अगर मैं चाहूँ तो मुझे कुछ भी करके पढ़ना ही पड़ेगा। सो एक तो आई न्यू दिस, फिर मैंने क्या किया था, तो कोई नहीं था तो मैं इंस्टाग्राम रील देखती थी। ठीक है, फिर मैंने इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट किया, तो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लगी। तो मेरे ऐसे प्रॉब्लम्स थे। सो फाइनली व्हाट वर्कड आउट फॉर मी, 11 बजे मम्मी सोने जाते थे, आई यूज टू स्विच ऑफ माई फोन एंड गिव इट टू हर कि अब आप छुपा दो इसे। तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन मम्मी छुपा देते थे, एंड मम्मी उठेंगे सुबह 7-8 बजे। ठीक है, तो तभी उन्हें ही लोकेशन पता है, तो मैंने 2-3 दिन तो घर में उनके सोने के बाद ढूंढा भी, कहाँ छुपाया है, नहीं रहा जा रहा है बिल्कुल। 2-3 दिन के बाद अपने आप एक्चुअली मेरा मन ही नहीं था कि ठीक है यार छोड़ो, फिर अपने आप ही आप पढ़ लोगे, वैसी वाली बात हो जाती है। सो एंड वही, आपकी नहीं इतनी हिम्मत होगी शायद कि आप कभी मम्मी को 3 बजे उठा के बोलोगे मम्मी नहीं बहुत ही ज्यादा चाहिए, आप फोन दे ही दो, नहीं हिम्मत होगी। जब सुबह 8 बजे वो उठेंगे देंगे फोन, तब तक आप पूरी रात पढ़ के इतना थक चुके होगे, आपको नींद आ रही होगी, आप मैक्सिमम 10-15 मिनट देखोगे, आप सो जाओगे। सो अब आप रात को नहीं जग रहे हो, इट इज समथिंग मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोला, बट अपने ये जो आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको आप मैनेज नहीं करोगे, एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शंस। Got it. So अपने लिए वो ऑप्शन ही मत रखो. एग्जैक्टली। ओके, हिमांशु, आई थिंक चैट बॉक्स पे अभी 3 क्वेश्चंस आए हैं. पूर्वा, जाजिम, Yes, yes. कैन मूव फॉरवर्ड विद दोस. Like there is one question: how to handle office work while preparing for attempt? वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिकॉज अब आपका ऑफिस टाइमिंग्स कैसा है, आपका वर्क कल्चर कैसा है, आपका डोमेन क्या है, तो आपके लिए पीक मंथ्स, पीक आवर्स, पीक डेडलाइंस अलग अलग होंगे। सो ऑफिस वर्क में व्हेन यू आर इन योर पीक सीजन, इट इज फाइन इफ यू आर नॉट स्टडिंग, आई वुड से, बिकॉज वही खुद को उतना बर्न आउट नहीं करना। इफ यू आर कमिंग होम एट 10-11, लीविंग योर होम बाय 8-9 इन द मॉर्निंग, इट इज फाइन इफ यू आर नॉट स्टडिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अब गिवन आपके ऑफिस टाइमिंग्स कैसे है, आप कितने बजे घर आते हो, अगेन गिवन आप नाइट आउल हो या अर्ली राइजर हो, यू कैन सेट योर टाइमिंग्स कि यार सुबह का 2 घंटा पढ़ लो या तो शाम का 2 घंटा पढ़ लो। And there is one question from Ajaz, like how did you manage CA, CS both, and how much time did you take to complete? एज इन एज एन आई थिंक सिलेबस कंप्लीशन का ड्यूरेशन ही इज आस्किंग कि टोटल Yes. कितना लगता है. सिलेबस, इट इज लाइक, देखो मैंने खुद पर्सनली आई हैड स्टार्टेड मेरे सीए फाइनल के लेक्चर्स, अगर मैं बोलूं, मैंने फेब में स्टार्ट किया था, सो दिस ईयर फेब। So Feb, March, April, I completed FR, AFR, IDT and audit के lectures. May पूरा month I had studied for CS professional. जून में I gave CS professional. CA में इंटर मैंने उसी वक्त पढ़ के दे दिया था. Then जून में थोड़ा सा जो लास्ट के 10 days थे I took a break because burn out नहीं करना है. जुलाई में I started DT and AFM के lectures. जुलाई में वो complete किया. August 1 month for revision and September में I gave exams. So timeline. करना है, रिवीजन किस तरह से करना है, कितने टाइम में करना है। सो हाँ। All right, thank you. Another question was there कि what do you think of the strategy of having at least 1 or 2 friends जिनका same attempt है and staying in touch with them throughout.
ताकि आप लोग साथ में एक स्टडी का रूटीन बना रहे? डिपेंड्स वो 2-3 लोग कैसे हैं. इट शुड नॉट बी लाइक हाँ चलो सेम अटेम्प्ट वाले हैं एंड ढूंढ लिए, बट वो सेम अटेम्प्ट में आर दोस पीपल हु आर एक्चुअली हैप्पी अबाउट योर प्रोग्रेस बहुत ज्यादा मैटर करेगा. बिकॉज हैविंग दैट नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर स्टडिंग मोर तो योर फ्रेंड फील्स जेलस ऑफ यू. दैट सो इट डिपेंड्स आप एक्चुअली कितने ट्रू फ्रेंड्स हो, ऑन फेस फ्रेंड्स हो या नहीं हो. प्लस चलो हम बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, तो हम रोज रात को ना 2 घंटा बैठ के क्रिब करते हैं कि तूने भी नहीं पढ़ा मैंने भी नहीं पढ़ा. अगर नहीं पढ़ा है ना दिन भर में, तो यू शुड हैव अ फ्रेंड हु टेल्स यू कि भाई अब 2 घंटा पढ़ने बैठते हैं. पूरा दिन वेस्ट हुआ, तेरा भी वेस्ट हुआ, मेरा भी वेस्ट हुआ, अस ब्रो अस मोमेंट हो गया. बट अब बस ये मोमेंट यही खत्म हो रहा है. वो मोमेंट 2 घंटे का मोमेंट नहीं होना चाहिए. अब इस 2 घंटा को हम इसमें चेंज करते हैं अपना डे एंड एटलीस्ट 2 घंटा पढ़ा है दिन का. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई योर सर्कल इज गोइंग टू मैटर अ लॉट कि आप अटेम्प्ट में वही क्लियर होने वाले हो या नहीं. फिर उस केस में कि अगर आप ऐसे ग्रुप बनाकर पढ़ रहे हो, बिकॉज ग्रुप स्टडी अगेन पूरा दिन मत करो. बट इवन आई हैड हर्ड किसी के इंटरव्यू में ये चीज कि व्हाट दे पर्सनली वुड डू वाज दे वर लाइक अ ग्रुप ऑफ 3-4 बॉयज लाइब्रेरी में. तो वो लोग पूरा दिन भर अकेले पढ़ते थे एंड लास्ट में जो लोग सीए फाइनल ऑडिट पढ़ रहे हैं, सो देयर आर प्रोफेशनल एथिक के क्लॉजेस. सो दैट वाज समथिंग ना, वो अकेले आप जब बैठते हो तो आप कितनी बार याद करोगे, नहीं होते. सो लास्ट का 1 घंटा वो लोग एथिक्स आपस में डिस्कस करते थे, उसके केस स्टडीज डिस्कस कर लेते थे. तो 1 घंटा चिल भी हो गया फ्रेंड्स के साथ एंड केस स्टडीज पढ़ाई भी हो गई. तो आपका ग्रुप बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि फिर वो जो 2-3 लोग आप चूज कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग देम. Got it. There's one question from Hitesh. What is the best way to approach theory subjects like audit in CA final? थ्योरी सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिट 2-3 तरीके हो सकते हैं. मतलब एक तो आई वुड सजेस्ट नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप मॉड्यूल लेके नहीं बैठ सकते एक दिन पहले. ओके, सो यू शुड हैव शॉर्ट नोट्स. देयर इज दिस वन टेक्निक दैट आई पर्सनली फॉलोड इवन सीएस बिकॉज हैज अ लॉट ऑफ थ्योरी. ठीक है, सो इट इज थोड़ा एक होता है ना स्कूल का ओल्ड बुक ट्रिक आई वुड से. तुम लोग बचपन में टेकअप देते थे हम टीचर को, याद करो ये पेज और आंसर सुनाओ. सो आई वुड पर्सनली डू दैट विद माई मॉम. सो मैंने ऑडिट का एक चैप्टर में याद कर, तो मैं ऑडिट के मैं जब नोट्स लिखती थी तो मैंने हेडिंग दिया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल द हेडेड इज टेक्निक्स ऑफ ऑडिट. ठीक है, तो उसमें वो AUIU की एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऐसे करके अब मैंने लिखे होंगे पॉइंटर्स एंड ऊपर हेडिंग दिया. सो आई वुड गो टू माय मॉम, आई वुड आस्क हर कि आप हेडिंग बोलना बस एंड ये नीचे का मैं सुनाऊंगी आपको. सो आप मेरा टेकअप लो. बिकॉज याद करने में क्या होता है ना, हम लोगों को इतनी आदत है प्रोफेशनल कोर्स में आके पढ़ रहे हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, पढ़ रहे हैं, बट वो पढ़ने के बाद हम याद करने पे ध्यान ही नहीं देते पाते. एंड क्यों नहीं दे पाते, बिकॉज स्पेस ही नहीं है. क्योंकि बुक बंद करके किया तो जब तुमने हेडिंग पढ़ी होगी ना, तो तुम्हारी आईज उतनी पावरफुल है कि वो नीचे का भी स्कैन करेंगी. सो वो प्रॉपर टेकअप वाली फील नहीं आ पाती. सो व्हेन आई हैव गिवन द बुक टू माय मॉम, मेरी आंखों को कुछ भी नहीं दिख रहा है, सो शी वुड रीड द हेडिंग एंड आई वुड आंसर हर. सो इट इज लाइक अ वेरी ओल्ड बुक ट्रिक वाली चीज, स्कूल में टेकअप वाला चीज जो मैंने सीए इंटर एंड फाइनल में खुद पर्सनली किया एंड इवन इन सीएस बिकॉज थ्योरी बहुत ज्यादा थी. यू कैन ट्राई दिस फॉर ऑडिट. Okay, so there is one question from Purva. Are there any factors granting a rank? आर देयर एनी फैक्टर्स? Granting a rank, आई डिडंट गेट द क्वेश्चन अगेन. I like think it था गारंटीइंग अ रैंक? guaranteeing. गारंटीइंग अ नहीं, नहीं, कोई रैंक की गारंटी नहीं है. आई वुड नॉट लाइक टू गिव यू ऐसा कोई भी फेक होप मोटिवेशन अबाउट इट कि यार ये चीज कर लो रैंक गारंटीड है. नहीं, देयर इज नो गारंटी ऑफ एवर गेटिंग अ रैंक. जो AIR 1 आ रहा है उसको भी कोई गारंटी नहीं होती कि AIR 1 आने वाला है. ये इवन AIR बहुत केसेस में अगर उसका पास्ट रिकॉर्ड है तो प्रोबेबली दे विल एक्सपेक्ट एन AIR, बट डज नॉट मीन कि हाँ गारंटी है उनके पास भी. बिकॉज स्पेशली AIR ना तुम्हारे मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता, वो बाकी लोगों के मार्क्स पे भी डिपेंड करता है ना. अगर उनके मार्क्स तुमसे ज्यादा आ गए, तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं बट AIR नहीं होगी. सो AIR के लिए कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ देयर इज सम थिंग्स कि तुम करोगे यू विल एंड अप विद अ गुड स्कोर, व्हिच इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस एंटायर वेबिनार, राइट? सो वो सारे टेक्निक्स हैं, यू फॉलो दैट, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स. प्लस इट इज लाइक
प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज। तो प्रिपेयर तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि यार नहीं ही हो पाएगा एकदम, इस बार बहुत ही टफ पेपर आना चाहिए वैसा। तो जब तुम उस हिसाब से प्रिपेयर करोगे, इफ यू एम कि मुझे 600 में से 300 लाने हैं, यू विल एंड अप विद 270। यू एम फॉर 500, तब जाके तुम 400 पे गिरोगे। तो थोड़ा यू एम उतना हाई, इवन इफ यू नो, इफ आई हैड सीन किसी तो ऑल इंडिया रैंक 8 या किसी का इंटरव्यू था, एंड उन्होंने उनके स्टडी टेबल पे तो AIR 1 लगा के रखा था, बट AIR 8 डज नॉट मीन कि वो इट इज अ स्मॉल डील। इट इज ऑब्वियसली स्टिल अ बिग डील। ऑल इंडिया रैंक 8 इज नॉट स्मॉल, बट जब आपने वहां एम किया, so that is where you fall, you know. Aim for the moon, you'll at least fall on the stars. Same logic. Okay, I think there is one more question. It's related to articleship domains. इससे उत्तर relevant नहीं है हमारे webinar से, but you can still answer if you'd like. The person has asked, how should they approach selecting a domain for their articleship? देखो इसमें ना अगेन डिपेंड्स, यू वुड नॉट हैव एक्सपीरियंस एज सच किसी में भी, प्लस वॉट एवर यू स्टडी थियोरी में, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ऑडिट, द डोमेन्स, दे आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम तुमने थियोरी में जो एग्जाम में पढ़ा है और जो तुम प्रैक्टिकली वहां पे एक्सपीरियंस करोगे। सो experiment with it. Articleship probably है उसके लिए, there are a lot of people articleship they do from a different domain, and then once they are qualified they change their domain. So changing your domain is fine, ठीक है। बट इफ यू आर समवन की नहीं, मैंने को बहुत ही एकदम सोच के करना है, probably you can try 1-2 months के internships आते हैं, then तुम वो डोमेन में काम करके देख लो। बट अगर नहीं, वहां पर टाइम भी बचाना है एंड यू आर वेरी अनक्लियर अबाउट योर डोमेन, देन 2 ऑप्शन बचते हैं एकदम प्रैक्टिकली स्पीकिंग, या तो तुम्हें जो मिल रहा है ले लो, कि तुम्हारे पास अगर कोई भी प्रेफरेंस नहीं है, या गेट इनटू अ मिड साइज फर्म जहां पे तुम्हें सब कुछ सिखाएं। तो सब कुछ सीखने के बाद देन चूज इट। Okay. One question that I had was that personally, in your personal opinion, what do you think separates a ranker from somebody who scores, an average number of marks? Rankers introspect. When things don't go their way, instead of blaming the circumstances ना, कि यार अगर ये वाला फंक्शन नहीं होता तो मैं ये कर लेता, अगर उस दिन मेरा मम्मी से ये झगड़ा नहीं हुआ होता तो मैं ये कर लेता, they will always sit and think what they can do better. थिंग्स जो आपके कंट्रोल में है उस चीजों पे फोकस करना, बिकॉज आई हैव सीन ये चीजें बहुत बार इवन स्टूडेंट्स में इन जनरली, कि स्पेशली अटेम्प्ट के बाद, अगर आप अटेम्प्ट के बाद ऑनेस्टली ये माइंडसेट से आते हो ना, कभी भी किसी के पास भी आप जाओगे कि यार पता है मेरे साथ ना इस बार ये हो गया था इसलिए मैं ये क्लियर नहीं कर पाया, दैट इज ऑनेस्टली योर फर्स्ट मिस्टेक, जो प्रोबेबली आप जिस स्टेज पे आए हो, जस्ट आपका रिजल्ट आया है एंड आप फेल हुए हो, तो तब ना आपको आप इंसान सामने से नहीं बोलेगा क्योंकि आप उस स्टेट में नहीं हो। बट अगर आप ये माइंडसेट से आ रहे हो ना कि मेरे साथ ना मेरा नसीब अच्छा नहीं था, या मेरे साथ ये चीज बुरी हुई थी उस टाइम पे इसलिए आई कुड नॉट क्लियर, सो वहां पर देयर इज अ माइंडसेट डिफॉल्ट। तो रैंकर्स के अंदर प्रोबेबली इट इज समथिंग दैट दे कैन इंट्रोस्पेक्ट, जहां पर वो गलत जा रहे हैं, अगर मैं आज गलत जा रही हूँ आई एम रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चेंज माई स्ट्रेटेजी। बट ब्लेमिंग इट ऑन सर्कमस्टांसेस कि मेरे साथ ये बुरा हुआ इसलिए आई एम नॉट एबल टू अचीव दिस, दैट इज लाइक एक माइंडसेट डिफरेंस है बिटवीन नॉर्मल लोग एंड प्रोबेबली रैंकर्स आई वुड से, या इवन समवन हु इज अचीविंग लेस मार्क्स एंड समवन हु इज अचीविंग मोर मार्क्स। आईक्यू इज समथिंग ना वर्क कर सकते हो आप, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा रिवाइज करोगे तो 2 या 3 अटेम्प्ट, चलो जिसका मेमोरी बहुत अच्छा नहीं है, 2 या 3 अटेम्प्ट में तो आपका आईक्यू मैच हो जाएगा रैंकर के साथ। इट इज द माइंडसेट। Got it, got it. We have to cover, but Shreyash, I will save the best for the last. उससे पहले एक second last question है पूर्वा का. Uh, what exactly differentiates an average marks वाला person from a 70-80 marks वाला person in terms of specifically language जो होती है आपके आंसर की, and आपके आंसर का जो structure जो होता है, module वाली exact language होनी चाहिए, या you can keywords आप use कर सकते हो सिर्फ. कीवर्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर समवन हु स्कोरिंग 45, इट कुड नॉट बी लाइक आपको 45 आ गया और आपने पूरे एग्जाम में एक भी कीवर्ड नहीं लिखा होगा,
मैं नहीं मानने को रेडी हूँ. सो आपने कीवर्ड्स तो लिखे ही होते हैं इवन फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, बट इट इज ऑल्सो अबाउट English proficiency that does differentiate, what as she has written, ki from someone who's getting 55 to someone who's getting 75. So proficiency in English, because बहुत सारे words हैं English के, एक हम normal language में बात करते हैं कि ठीक है, I made the financial statements, and then जब आप audit में जाते हो तो okay, preparing and presenting financial statements हो जाता है वो. So there are a lot of words, in general की okay, या अगर मैं जेनजी के लैंग्वेज में बोलूं, सो ओके, देयर इज दिस वन गाय who's not interested, who does not act interested, बट जब जेनजी बात करता है तो दे विल से कि अरे दिस गाय इज वेरी नॉनशेलेंट. सो ये जो इसने बोला ना कि वो गाय इंटरेस्टेड एक्ट नहीं कर रहा है, उसको प्रोबेबली 55 आए थे एग्जाम में. एंड द वन हु इज लाइक द गाय इज वेरी नॉनशेलेंट, दैट पेपर इज 75 वाला. सो इंग्लिश दोनों बोलना सेम चीज ही जा रहे हैं और दोनों इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं, but still there is this difference. So examiner again human है, human psychology, you are impressing the examiner more. MCQ strong कर लो, अगर आप 30 on 30 MCQ में aim कर सकते हो, that is a gift. So if you are getting 30 marks फिर 70 में से अगर मैं बोलूं just 50 marks, अगर आप 50% लाना है 35, तो 30 plus 35 आपका पेपर 65 पे पहुंच गया. So MCQs आप बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रक्चर, एग्जामिनर के ऊपर ना वर्ड्स छाप के मत आ जाओ आंसर शीट पे कि इसमें से तुम पढ़ के ढूंढ लो आंसर हमने तो सही लिखा है. पैराग्राफ्स बनाओ, स्पेसिंग होनी चाहिए बीच में. इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पेंसिल से अंडरलाइन करो. आई ऑलवेज से, आप सेम पेन से भी करते हो तो पेन पेन में नहीं दिखता है बहुत बार. अंडरलाइन इट विद पेंसिल, क्योंकि ब्लू पेन से भी मत करना, अलाउड नहीं है अलग पेन यूज करना. तो पेंसिल से उन वर्ड्स को अंडरलाइन करो. आप एग्जामिनर के लिए जितना जॉब इजी करोगे वो आपके लिए चीजें उतनी इजी करेगा. सो स्ट्रक्चर वाइज स्पेसिंग देना, पॉइंटर्स में आई ऑलवेज सजेस्ट, बहुत छोटी चीज है, बुलेट्स मत बना के आओ, एरोज मत बना के आओ. यू आर राइटिंग अ प्रोफेशनल एग्जाम, राइट 1 2 3 4 एज द पॉइंट्स. इवन आई सजेस्ट, बहुत छोटी सी साइकोलॉजी की ट्रिक है ये, कि ABCD भी मत लिखो, राइट 1 2 3 4, क्योंकि व्हेन द एग्जामिनर सीज F, उसको 2 मिनट लगेगा कि ओके ही हैज रिटन 6 पॉइंट्स, बट इफ ही सीज 1 2 3 4 5 6, उसको दिख रहा है कि 6 पॉइंट है, बात खत्म हो गई. सो मतलब साइकोलॉजी के ये 2-3 ट्रिक्स हैं मुझसे. Got it, got it. Perfect. Is it applicable? Yeah, just one more doubt regarding that. Ki this is applicable for language part, is applicable for theory subjects like audit or law, but for practical aspects, प्रैक्टिकल anything में भी different? अकाउंट्स में थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 में लिखने के लिए आता है कि was it an adjusting event or a non adjusting event, है ना. सो अगेन हाँ, मतलब अगर अकाउंट्स का क्वेश्चन जर्नल का क्वेश्चन है तो फिर तो हाँ इंग्लिश की जरूरत नहीं है, बट अकाउंट्स में भी तो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं. FM में भी तो लास्ट क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन आता है. कॉस्टिंग में भी तो लास्ट क्वेश्चन 20 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आता है. Okay. वहां पर आप कौन से वर्ड यूज कर रहे हो, तो इंग्लिश वहां पर काम आएगी. बट हाँ, अगर मैं कॉस्ट शीट बना रही हूँ तो वो तो पता ही है कि प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट और वो सारी चीजें हैं, एंड आगे नंबर्स हैं, तो वहां इंग्लिश का रोल नहीं है, राइट. Got it. Okay, okay. Moving on to the last question by Shreyash. If you're doing 100 other things apart from studying in your articleship period, now you've changed your priorities. So it's वो transition बहुत difficult होने वाला है. From you have been doing networking and आप conferences organize कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, you're constantly participating and being very outgoing. So उसके लिए आपके पास क्या एडवाइस है, to now get your mind back into studies and routine and रोज वो सेम चीज करना, सेम चीज पढ़ना. What would you advise for that? ये एक तो मैंने ना श्री ने एकदम जो उससे रिलेटेड एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, इट इज लाइक हिम आस्किंग इट वेरी स्पेसिफिकली फॉर हिमसेल्फ. तो इट इज लाइक अमेजिंग, बिकॉज ऑनेस्टली लाइक व्हाटएवर श्री डज, ही इज सो अमेजिंग. अलग लेवल पे उनकी फैन फॉलोइंग जो पैन इंडिया चल रही है इस वक्त, कोई compete नहीं कर पा रहा है. बट हाँ, इट इज लाइक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, अगेन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि आप कब यू आर स्नैपिंग आउट ऑफ इट, कब आप उस फेज से बाहर आ रहे हो वेर यू अंडरस्टैंड कि ओके नाउ आई नीड टू कम बैक. इसमें इवन 100 अदर थिंग्स छोड़ो, लोग सिर्फ आर्टिकलशिप में जा रहे हैं, मेरे साथ खुद हुआ. आप आर्टिकलशिप में जा रहे हो, आप ना जॉब जोन में आ गए, अब वो जॉब में आप वर्कर जोन में हो ना, वहां से वापस स्टूडेंट जोन में भी नहीं आ पा रहे.
इंटर और फाइनल के बीच में. सो 100 अदर थिंग्स. प्लस आपने स्पेशली जब नेटवर्क कर लिया तो अब लोग आपको जानते हैं ना, तो आपको रोज 100 मैसेजेस तो आ ही रहे कि अरे श्री भाई आप कैसे हो, क्या हो, विच आई एम प्रीटी श्योर आपको आ रहे हैं. ठीक है. तो इसके अंदर ऐसा है कि अब आपको पता होना चाहिए कि यार व्हेन इज दैट राइट टाइम टू पुट अ फुल स्टॉप टू दैट. ठीक है. एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी ट्रांजिशन ऑब्वियसली. तो इसलिए अगर आप एग्जाम के 4 महीने पहले सोच रहे हो ना कि मैं अब 4 महीना गायब हो जाऊंगा, नहीं हो पाओगे. यू नीड टू, अगर आपको लग रहा है मेरे लिए 4 महीना पढ़ाई की जरूरत है, स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ दैट जोन 6 महीना पहले से. वो 2 महीना आपका ट्रांजिशन पीरियड होगा जहां पर यू विल बीच बीच में शायद फॉल बैक, जहां पर आप एक दो गैदरिंग्स में चले गए या कुछ करा. बट वो 2 महीना आपका ट्रांजिशन फेज के लिए आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा. तब आप जाके 4 महीना बैठ पाओगे. अगर आपको लगता है मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, तो स्टार्ट 8-9 महीना पहले, थोड़ा सा टेकिंग अ स्टेप बैक फ्रॉम एवरीथिंग. तो वो ट्रांजिशन पीरियड के लिए गिव खुद को थोड़ा सा टाइम. एंड वो 6 महीने में यू कैन ऑलवेज टेल योर सेल्फ कि दिस इज टेम्पररी. ये 6 महीना मेरा स्टडी पीरियड है. वंस माई एग्जाम्स आर डन, इफ आई लव दिस, आई एंजॉय नेटवर्किंग, आई एम गोइंग टू गेट बैक एट इट. सो Got it. Perfect. I think maximum doubts cover हो गए हैं. So I think we can move on with the concluding remarks. So Lakshya, you can go ahead. Yes, thank you. Thank you, ma'am, for sharing your journey so openly and clearly. Your experience, insights, and practical advice really connected with everyone today. And also, big thank you to our engaging and enthusiastic audience. You made this session special and gave the perfect close to our last webinar of the year. We hope you are walking away with new clarity, renewed confidence, and belief in your own path. Wishing you all a very happy new year and continued growth ahead. Thank you and lovely evening.